Hello, friends. I hope you are all fine. You are all enjoying. Today we talk about UPSC result of 2019. I hope you are all aware about it because the result has come out. One thing you should remember if you are preparing for UPSC, UPSC is a long journey. If we talk about those aspirants who have been qualified in this year and others who are not qualified in this year, were in this journey since a long time, means from February to August, means from prelims to result, they struggle a lot. That's why I told you UPSC is a long journey. Now in this video, friends, we discuss about the total aspirants who qualified and the total aspirants from different categories and the total aspirants of IAS, IPS, IFS, center service of Group A and Group B. Okay, and some basic tips and tricks which help you to crack any competitive exam, particularly for UPSC. Okay, now we discuss about the total aspirants are 829. Okay, now we discuss about the total aspirants from different categories. If we talk about the general category, the total aspirants are 304 out of 829. If we talk about EWS, the total aspirants are 78. If we talk about OBC, the total aspirants are 251, SC 129, ST 67. Total aspirants of all categories are 829. Now we talk about the total aspirants from different services. It may be IAS, IFS, IPS, center service Group A and Group B. If you talk about the IAS, the total aspirants in general 72, in EWS 18, in OBC 52, in SC 25, in ST 13. Total aspirants in IAS service 180. If we talk about IFS in general, total aspirants are 12, in EWS 2, in OBC 6, in SC 3, in ST 1, total 24. If you talk about IPS in general, total aspirants are 60, EWS 15, OBC 42, SC 23, ST 10. Total aspirants are 150. If we talk about the center group A, in general total aspirants are 196, in EWS 34, in OBC 109, in SC 64, in ST 35. Total aspirants are 38 in center service Group A. If we talk about Group B service, in general total aspirants are 57, in EWS 14, in OBC 42, SC 14, ST 8. Total aspirants in Group B service 135. Total aspirants in general 397, in EWS 83, in OBC 251, in SC 129, in ST 67. Now we talk about the list from topper. Okay, you can see by own. Okay, from here. Okay, okay,
all candidates 2019 qualified. Okay. You can see. Okay. Okay friends, here concluded. Now we talk about some basic tips which help us to crack any competitive exam, particularly for UPSC. Okay friends, first point, you should do wake up early in the morning, because फ्रेंड्स जब भी आप सुबह सवेरे उठोगे तो जो भी कोई इंसान सुबह सवेरे उठेगा वो किसी खास पर्पस, किसी मकसद के लिए उठेगा, ना कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पे रहने के लिए, ना कि चैट करने के लिए कोई सवेरे उठता है। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी डिस्ट्रैक्शन सुबह सवेरे बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू नाइट। क्योंकि नाइट में पहला चीज, जो भी दिन में आपने जो भी काम किए हैं, तो जब भी फिर नाइट में पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके जहन में वो काम, कुछ जो भी आपने किया है दिन में एक्टिविटी, वो आपके दिमाग में घूमते रहती है, कुछ ना कुछ याद आता है। और दूसरी बात, आप थोड़ा टायर्ड भी होते हैं, एग्जॉस्टेड भी होते हैं, जिससे आप अच्छी तरह कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाते हो। और फोन में नोटिफिकेशन नाइट में मिलते रहते, जिससे आप क्या डिस्ट्रैक्ट होते हो। और एज कम्पेयर टू अगर सुबह की बात करें तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी कम मिलते हैं और आप अच्छी तरह फोकस, कंसंट्रेट भी कर सकते हो, और आपका माइंड सुबह फुल्ली फ्रेश होता है। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, आपको फ्रेंड्स इमोशन लेस बनना पड़ता है। इमोशन, क्योंकि यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है, इमोशन, अपनी इमोशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको एट लीस्ट यू शुड रीड 8 to 10 आवर्स इन डेली, इन ए डे। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेंगे। और वन मोर थिंग, चूज ए स्टडी प्लेस वेयर देयर आर लेस डिस्ट्रैक्शंस। कोई ऐसी प्लेस चुनो जहां पर कम डिस्ट्रैक्शंस हो। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करोगे प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, अपने फोन को स्विच ऑफ कीजिए। क्योंकि अगर आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है तो उससे आप ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है। एंड जब भी आप सुबह उठोगे, मेक टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, एक दिन के टारगेट्स बनाओ और उनको एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपने दिन में 5 टॉपिक्स का टारगेट बनाए, 6 टॉपिक्स, 7, वट एवर, और जब भी आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तो उसको किसी खाली पेपर पे लिखिए और अपने सामने चिपकाए, जिससे क्या हो जाता है, आपको उस पर बार बार नजर पड़ती है तो आपके दिमाग में एक बूस्ट, आपके दिमाग में ट्रिगर सा हो जाता है, वो आपको बूस्ट करता है, जिससे आपको अपने दिमाग में आप सोचते हो, आप मोटिवेट होते हो कि यार मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है तो अब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जब 2 करते फिर मैं तीसरा कंप्लीट करूंगा, जिससे आप क्या मोटिवेट रहते हो। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो यूपीएससी की जो जर्नी है बहुत लंबी है। एंड वन मोर थिंग, यू शुड टेक ए प्रॉपर डाइट, बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि लॉन्ग जर्नी है, डाइट, सेहतमंद भी होना बहुत ज़रूरी है स्टडी के लिए। एंड ऑलवेज मोटिवेटेड, एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड रिवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। रिविजन जो होता है, रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पहली बार पढ़ते हो तो कम याद रहता है, जितना आप रिविजन ज़्यादा करो उतना आपको अच्छा याद रहेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहो। ओके।
Take care, friends. Okay, bye bye.